Dear students, today I am going to start with the third chapter of SST of class 5th. The name of the chapter is Physical Features of the Earth, in which we are going to study. We are going to study about the physical features of Earth, about its landforms, what kind of landforms is present on the Earth. Okay, so definitely the synopsis is Earth's surface. Okay, we are going to study about the Earth's surface and its landforms. So let's start the chapter. Okay. So scientists believe that Earth formed from a cloud of dust particles about 4.6 billion years ago. हमारे साइंटिस्ट को लगता है कि ये जो हमारी पूरी अर्थ है ये डस्ट के पार्टिकल्स का एक क्लाउड है जो अरबों खरबों साल पहले मिलकर बनी है. ओके, The surface of the earth is known as earth crust. हमारी अर्थ की surface को, ये जो outer surface आप देख सकते हैं, इसको अर्थ की crust बोला जाता है. It is a thin layer of oak, जो कि कुछ नहीं है, बस एक rocks की एक पतली सी layer है. Beneath the earth crust there is a layer known as mantle of the earth. ठीक है, और ये जो अर्थ की क्रस्ट, आप ये जो लेयर देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल जो अर्थ के क्रस्ट के बिल्कुल जस्ट बाद आ रही है, इसको mantle बोला जाता है, which is surrounded from the earth from all the sides. The mantle surrounds the part in the center. At the center of the earth is the core. ठीक है, और अर्थ के बिल्कुल सेंटर में क्या है, ये बिल्कुल सेंटर में क्या है, कोर. और ये भी दो तरीके के होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर. एंड डेफिनेटली इनर कोर इज मोर हॉटर देन आउटर कोर. The core is made up of very hot and molten rocks. कोर किससे बना है, बहुत ज़्यादा हॉट और molten rocks से बना है. The surface of the earth, the surface of the crust of the earth is always moving. जो अर्थ का surface का crust होता है, ये जो crust आप देख सकते हैं अर्थ के surface का, ये हमेशा move करता रहता है, हमेशा moving action में रहता है. The continents drift apart, the oceans rise and fall. जो continents होते हैं, drift apart होते हैं, oceans होते हैं, वो rise करते रहते हैं, fall करते रहते हैं, क्योंकि अर्थ की crust हमेशा move करती रहती है, इसलिए इनका भी rise fall चलता रहता है. चलिए, this was the introduction. Now let's study about each landforms of the earth one by one. We will study about landforms, about hills, about oceans, about rivers. Okay, these are some landforms of the earth which we are going to study now. So the first landform is land. What is a landforms? First understand it what landforms basically are. So any natural shape on the earth's surface is known as landforms. ठीक है, हमारी अर्थ का ये जो surface है, इसकी कोई भी natural form जो होती है उसको हम landforms बोलते हैं. ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट है. ठीक है, इसी से ही कुछ कभी ऐसे माउंटेन्स बन जाते हैं, कभी ऐसे हिल्स बन जाते हैं, कभी प्लेन्स बन जाते हैं. ओके, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. लैंडफॉर्म्स इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेटूज. ठीक है, लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, हिल्स आते हैं, वैलीज आती है, प्लेन्स आते हैं और प्लेटूज आते हैं. मोस्ट लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज इरोजन ड्यू टू विंड एंड रेन. ज़्यादातर लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं, नेचर की वजह से बनते हैं, जैसे कि इरोजन हो गया ड्यू टू विंड एंड रेन. ठीक है, हवा और बारिश की वजह से इरोजन होना, यानी कि धीरे धीरे करके सैंड का एक जगह इकट्ठा हो जाना. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इरोजन. They also form because of weather conditions such as frost and chemical actions. ठीक है, ये weather conditions की वजह से बनते हैं, जैसे कि frost और chemical actions हो गए. कुछ natural events होते हैं जैसे कि eruption of volcanoes and earthquakes and also shape the world. ठीक है, यानी कि volcanoes और earthquake की वजह से भी हमारी earth की shapes change होती रहती है और इन landforms की birth होती है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट लैंडफॉर्म अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज माउंटेन. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माउंटेन्स. Okay, so let's study about mountains. A mountain is a very high point on the earth's surface that rises at least 1000 feet above its surrounding. ठीक है, यानी हमारी अर्थ की सराउंडिंग से हज़ारों फीट ऊंचा है. ठीक है, 1000 फीट लगभग ऊंचा होता है और इन्हें क्या बोलते हैं, माउंटेन्स. ठीक है, ये हाई पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, यानी इनके ऊपर क्या होती है, चोटी होती है. Some mountains are steep and snow-capped. कुछ mountains क्या होते हैं, steep होते हैं, यानी कि एक narrow valley टाइप चीज़ को बोला जाता है steep, और snow-capped यानी कि बर्फ से ढके होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बर्फ से ढके हुए हैं. Others have gentle slopes and round tops. ठीक है, कुछ के gentle slopes होते हैं, ये slopes होते हैं. ठीक है, और round tops होते हैं. ठीक है,
इस तरह से. Some like volcanoes have giant holes on their tops. There are mountains under the oceans are even taller than Mount Everest, which is the tallest mountain on the earth. ठीक है, volcanoes की तरह भी होते हैं कुछ. volcanoes के अंदर क्या होता है, होल होता है जिसमें से लावा निकलता है. तो कुछ इस तरह के mountains भी होते हैं जिनके बीच में giant holes होता है. ठीक है, और आपको पता है Mount Everest is the world largest mountain in the world. पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा होता है, माउंट एवरेस्ट. तो कुछ ओशंस होते हैं, ये ओशंस हैं. ठीक है, तो ओशंस के बिल्कुल नीचे ना माउंटेन्स होता है. फॉर एग्जांपल ये ओशन है, यहाँ पे इस तरह से माउंटेन्स होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं ओशंस के अंदर जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़े होते हैं. उनमें से कुछ माउंट्स तो ऐसे होते हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़े हैं, और कहाँ पर होते हैं, ओशंस के नीचे होते हैं. ठीक है. Now, sometimes molten lava pushes up towards the Earth's surface but does not break through. Blocks of rock split along fault lines and slide in opposite directions. ठीक है, जो molten lava होता है वो अर्थ की सरफेस की तरफ आता है, यानी वोल्केनो से बाहर आता है, पर वो उस अर्थ की सरफेस में कोई हार्म नहीं करता. मतलब कुछ भी वहाँ पे क्रैक्स वगैरह नहीं बनते हैं उसकी वजह से. ठीक है, बट जो ब्लॉक्स होते हैं रॉक के, ठीक है, वो फोल्ट लाइन्स के अलॉन्ग जाते हैं और उससे अपोजिट डायरेक्शंस में इकट्ठा हो जाते हैं. As the great plates on the earth crust move towards each other, the sediments deep below the earth's surface are squeezed up to form mount ranges. ठीक है, तो माउंट रेंजेस कैसे बन रहे हैं, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बन रहे हैं. ठीक है, जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट पर, वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, और जो सेडिमेंट्स अर्थ के बिल्कुल नीचे दबे हुए होते हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, जिससे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की क्रस्ट पर, उनकी वो एक दूसरे के पास आती है, और जो इनके बिल्कुल बीनीथ में जो सेंटीमेंट्स जमा होते हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, और वो कलेक्ट होकर क्या बन जाते हैं, माउंटेन्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, ब्रॉडली वी कैन अंडरस्टैंड दिस. अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स यू विल स्टडी अबाउट इन हायर क्लासेस. ओके, दिस इज जस्ट अ ब्रॉड वे विच आई एम टेलिंग यू. The climate in the mountains are usually cold. Mountains में जो climate होता है जनरली ठंडा होता है. ठंडा क्यों होता है, क्योंकि mountains बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है. ठीक है, coniferous trees such as pine trees grow in the mountains. ठीक है, coniferous trees पता है क्या होते हैं, जैसे जो ये ट्रीज होते हैं ना जी, ठीक है, यानी जिनकी चोटी होती है, जिन माउंटेन्स की ऐसे नैरो लाइक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको बोला जाता है कॉनिफेरस ट्रीज. ठीक है, जैसे कि पाइन ट्रीज बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट हिल्स नाउ. ओके, सो आवर अदर लैंड फॉर्म इज हिल्स. Like mountains, hills are high points on the earth's surface, but they are not as high. Some hills are formed the same way as mountains, others are formed by the actions of glaciers. ठीक है, तो hills क्या होता है, वो भी mountains की तरह होते हैं, ऐसी चोटी होती है उनकी भी, but they are generally small as compared to the mountains. ठीक है, mountains के comparison में generally छोटे होते हैं, और ये glaciers के actions की वजह से भी form होते हैं. ठीक है, next is plateaus. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटोज. प्लेटोज आर एरियाज ऑफ हाई फ्लैट लैंड. ठीक है, यानी कि ऊंचा सा एक फ्लैट लैंड, एकदम फ्लैट होता है ये, इस तरह से एकदम फ्लैट लैंड की तरह ही होता है, इनमें कोई चोटी वगैरह नहीं होती है. प्लेटोज आर सराउंडेड बाय स्टीप रॉक्स फेसेस कॉल्ड क्लिफ्स. ओके, प्लेटोज स्टीप रॉक्स से सराउंडेड होते हैं जिनको हम क्लिफ्स बोलते हैं. ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे ओशन जा रहा है, और यहाँ पर ऐसे एक चोटी सी है एकदम इस तरह से. ठीक है, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है. ठीक है, होता है ना एटमॉस्फेयर देखने के लिए. तो ये जो एकदम चोटी सी बनी हुई है, ये जो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये खड़ा हुआ है, जो माउंटेन की तरह बन रहा है, माउंटेन नहीं कह सकते इसको, बट जो खड़े हुए रॉक्स की तरह बन रहा है, इसको हम क्लिफ्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लिफ्स. फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं. प्लेटोज आर सराउंडेड बाय स्टीप रॉक्स. स्टीप रॉक्स मतलब ऐसे खड़े हुए रॉक्स, ऐसे सीधे खड़े हुए रॉक्स हैं ये, जिनको हम क्लिफ्स बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लिफ्स. ठीक है, और ये प्लेटू है हमारा. ठीक है, तो यही लिखा है कि जो जनरली प्लेटोज होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, वो क्लिफ से सराउंडेड होते हैं. बिकॉज दे राइज स्ट्रेट अप फ्रॉम द लैंड. प्लेटोज आर ऑफन कॉल्ड टेबलैंड्स. और इसलिए प्लेटोज को क्या बोला जाता है, टेबल लैंड्स. ठीक है, प्लेटोज को क्या बोला जाता है, टेबल लैंड्स बोला जाता है, क्योंकि एकदम टेबल की तरह ही प्लेन, एकदम फ्लैट है. ठीक है, a canyon is a valley with very steep sides. A ravine or a gorge is a small canyon. A gully is also a ravine. ठीक है, तो canyon और ravine क्या होता है, तो बेसिकली मैं canyon की बात करूँ तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊँ, ऐसे ही माउंटेन्स हैं.
ठीक है। ऐसे ये प्लेटोज है, तो इनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा नैरो पतली सी जगह जा रही होती है जिसको कैनियन बोलते हैं, ठीक है। रेवन भी सेम चीज़ होती है, एक पतली सी नैरो, साइड में बहुत ज़्यादा स्टीप रॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक वैली जा रही होती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्टीप साइड्स होती है, यानी बहुत ज़्यादा खड़े खड़े से होते हैं, बहुत ज़्यादा पतली सी जगह उसमें निकली हुई होती है, ठीक है। चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेटोज। लेट्स स्टडी अबाउट हिल्स, ठीक है। When water runs down mountain sides and hill sides, it wears away the rocks and soils it passes over, ठीक है। यानी कि जब माउंटेन से और हिल से पानी ऐसे बहता हुआ जाता है, आपको पता है माउंटेन से तो यहाँ से ऐसे पानी फ्लो करता हुआ जाता है, हिल्स से फ्लो करता हुआ जाता है, तो वो अपने साथ सेंटिमेंट्स और रॉक्स लेकर आता है, ठीक है। और बाद में वही रॉक्स और सेंटिमेंट्स कलेक्ट होकर क्या बन जाते हैं, वैलीज, ठीक है। Over long provides of time, the water carves out V-shaped grooves. The groove gets deeper and wider, finally forming lowlands areas called valleys, ठीक है। अभी इनका नाम वैलीज V से इसलिए रखा गया क्योंकि ये V शेप फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, ये V शेप्ड ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या जा रही है, ये वैलीज जा रही है, ये वैली है, ठीक है। ये एक वी शेप फॉर्म करते हैं, मतलब ये कुछ इस टाइप के होते हैं कि यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, और बीच में कोई रिवर हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग जगह हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे एक वी शेप फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिनको हम वैलीज बोलते हैं, ठीक है। अदर वैलीज टिपिकली वी शेप्ड आर फाउंड बाय ग्लेशियर्स, ठीक है। और जो बाकी की वैलीज होती है वी शेप की, वो जनरली कहाँ से मिलती है, ग्लेशियर्स वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। The next is plains, ठीक है। Plains, as the name is suggesting, it is something plain-like structure. Okay, we have also studied coordinates of plain in maths as well, so it is something similar to that, ठीक है ना। This is a plate flat area. Large areas of level और gently rolling land are called plains, ठीक है। जो बड़े बड़े areas होते हैं और gently rolling lands होते हैं, उनको हम plains बोलते हैं। For example, you can see this in this picture as well. Plains can be dry and grassy landforms. Plains क्या होते हैं, सूखे होते हैं और grassy landforms पे होते हैं। For example, ये dry plains की पिक्चर दिखाई हुई है। They can also wet lowlands surrounded rivers and streams, ठीक है। वो एक wet lowlands यानी कि गीली ज़मीन भी हो सकती है जो कि रिवर्स और स्ट्रीम से सराउंडेड है, ठीक है। स्ट्रीम्स यानी कि पतली पतली जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, वो स्ट्रीम्स होती हैं। These plains are known as flood plains, ठीक है। और इन प्लेन्स को क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन्स बोला जाता है, जो कि वेट लोलैंड्स होती है और रिवर्स से सराउंडेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, सूखा रेगिस्तान, ठीक है, जहाँ पे कैमल्स वगैरह होते हैं। लार्ज हॉट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड विद वेरी फ्यू प्लांट्स आर नोन एज डेजर्ट्स, ठीक है। बहुत बड़ा और एक गर्म इलाका होता है ये, जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फ्लावर्स और प्लांट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स, ठीक है। Deserts get very little rain and are mostly covered with sand, ठीक है। आप देख सकते हैं सूखा रेगिस्तान है ये, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और ये जनरली पूरा सैंड से कवर है, ओके। 1/3 ऑफ द इंटायर लैंड सरफेस ऑन अर्थ इज डेजर्ट, यानी कि इस पूरे लैंड सरफेस का 1/3 पार्ट क्या है, डेजर्ट्स है। नेक्स्ट इज रिवर्स, ठीक है। रिवर्स आर बॉडीज ऑफ वाटर दैट बिगिन एट अ सोर्स एंड फ्लो बिटवीन बैंक्स ऑफ अर्थ टू अ माउथ वेयर दे एम्प्टी इनटू अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। रिवर्स क्या है, जो कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से निकलता है और फिर बहता हुआ चला जाता है, कहाँ से, बैंक्स ऑफ अर्थ टू अ माउथ, यानी कि अर्थ के बैंक से, और माउथ वेयर द एम्प्टी इनटू अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी किसी पर्टिकुलर लार्ज बॉडी से निकलता हुआ चला जाता है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के थ्रू ये रिवर्स में पानी चला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो लार्ज रिवर्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, अपर, द मिडल एंड द एस्चुरी, ठीक है। यानी कि तीन पार्ट्स ऑफ रिवर्स होती हैं, द अपर, द मिडल एंड एस्चुरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आर रिवर्स और स्ट्रीम्स दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर्स और स्ट्रीम्स, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, एक ऐसे रिवर्स है या एक ऐसी स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स से पहले बता चुकी हूँ, स्ट्रीम्स नालियों को बोलते हैं जो पतली पतली जगह से वाटर या कुछ भी चीज़ फ्लो होता है, दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर्स और स्ट्रीम्स, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इनसे पतली पतली ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होती हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज अपने साथ वाटर लेके हुए आती है और वो सारा वाटर भी रिवर के वाटर के साथ ऐड होता चला जाता है, ठीक है। A tributary ends at confluences or meeting points where the river joins, ठीक है। और कहाँ पर एंड होती है ये मैं बता चुकी हूँ। ट्रिब्यूटरीज जो स्ट्रीम लाइक तरीके की होती हैं, वो इस तरह से ऐड होती हैं और ये पूरी क्या है, रिवर है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रिब्यूटरी,
ठीक है। तो एक नहीं है, ऐसी कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर जो है रिवर के वाटर के साथ फ्लो होती चली जाती है। ये लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरी एंड्स एट कॉन्फ्लुएंसेस और मीटिंग पॉइंट्स वेयर द रिवर जॉइंस। कहाँ पर एंड होती है ये? जहाँ पर रिवर जॉइन कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिब्यूटरी खत्म हो गई है और यहाँ पर रिवर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। रिवर फ्लोज फ्रॉम हाई अबव द सी लेवल। रिवर कहाँ से फ्लो होते हैं? एक हाई अबव सी लेवल से फ्लो होते हैं, यानी कि माउंटेन्स, हिल्स और ड्रेन वाटर से। मतलब बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है हाउ डज रिवर एक्चुअली फॉर्म। सो रिवर्स आर फॉर्म्स बाय मेल्टिंग ऑफ ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मेल्टिंग स्नो ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, यानी माउंटेन्स और हिल्स पे जो स्नो कलेक्टेड होती है उसके मेल्ट होने से रिवर फॉर्म होती हैं, ठीक है। और लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज बैज और ओशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे यानी कि रेन वाटर यानी कि जो बारिश का पानी है उसकी वजह से रिवर्स फॉर्म होती हैं। वाटर फीड्स इनटू रिवर इन सेवरल वेज अपार्ट फ्रॉम रेन, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिवर्स सिर्फ बारिश के पानी से आ रही है, देयर आर ऑल्सो सेवरल अदर वेज थ्रू विच द रिवर्स आर फॉर्म्ड। दे कम फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स एंड माउंटेन स्ट्रीम्स, ठीक है। रिवर्स और कहाँ से बनती है? अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स और माउंटेन स्ट्रीम से वो बनती हैं। ग्लेशियर्स एंड आइस मेल्ट्स इन द माउंटेन्स एंड फीड इनटू द रिवर्स। जो ग्लेशियर्स और आइस होती हैं वो मेल्ट हो जाती है माउंटेन्स और फीड की, जो कि रिवर्स में चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो माउंटेन्स और फीड कैरी करके रखते हैं अपने आइस को, वो मेल्ट हो जाती है और रिवर के साथ फ्लो होने लग जाती है। स्ट्रीम, ब्रुक्स, क्रीक्स आर स्मॉल रिवर्स, ठीक है। कुछ स्मॉल रिवर्स कौन कौन सी है? स्ट्रीम्स, ब्रुक्स एंड क्रीक्स, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द स्मॉल रिवर्स एग्जाम्पल्स आर स्ट्रीम्स, ब्रुक्स एंड क्रीक्स, ओके। So here our chapter completes. So let's do some exercise so that your knowledge which you have gained now will be grasped more, okay. The practice makes a person perfect. So let's do some exercise. What is that? What is the center of the earth? The center of the earth is core, ठीक है। I told you the center of the earth is core, ठीक है। And there are also two types of core, the inner core and the outer core. Any natural shape of the earth surface is also known as, अर्थ की सरफेस का जो नेचुरल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और बाकी के जो ऑप्शंस है प्लेन्स और माउंटेन्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। प्लेटूज आर सराउंडेड बाय स्टीप रॉक फेसेस। जो प्लेटूज स्टीप रॉक फेसेस से सराउंडेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लिफ्स, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम से बताया था कि ये क्लिफ्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा खड़ा होके आसपास का एटमॉस्फेयर देख रहा है, ये जो बना हुआ है आई कैन से अ चोटी लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्लिफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिफ, ओके। लार्ज एरियाज ऑफ लेवल्स और जेंट्री रोलिंग लैंड आर कोल्ड। जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, लेवल्स और जेंट्री रोलिंग लैंड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा ही क्या होते हैं? प्लेन्स, ठीक है। Do some fill in the blanks. The dash surrounds the center of the earth, ठीक है। यानी अर्थ के सेंटर से क्या घिरा हुआ है? द कोर नहीं, अर्थ का सेंटर यानी कोर तो सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? मेल्टन, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या होता है? हमारी अर्थ की क्रस्ट, ठीक है। और हमारी पूरी अर्थ किससे बनी है? हमारे साइंटिस्ट का मानना है डेट अर्थ इज नथिंग बट द क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ओके। जो डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मेल्टन। आई होप इट इज विजिबल, दिस कलर इज विजिबल, आई होप। एनी नेचुरल शेप ऑन द अर्थ सर्फेस इज नोन एज, अर्थ के सर्फेस पर किसी भी नेचुरल शेप को क्या बोलते हैं? अभी एमसीक्यूज में भी आया था, दिस इज कॉल्ड लैंड फॉर्म्स, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज, जो अर्थ की क्रस्ट, द सर्फेस ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसका जो सर्फेस होता है वो हमेशा क्या रहता है? So the third fill in the blanks is the surface of crust of the earth is always, जो अर्थ का surface की crust होती है वो कैसी होती है? हमेशा मूविंग होती है, हमेशा मोशन में रहती है ये, ठीक है। और मोशन में रहने की वजह से क्या होता है? जो कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और वगैरह होते हैं ये राइज एंड फॉल करते रहते हैं, अलग अलग जगह प्रेशर पे चेंज करते रहते हैं। लैंड फॉर्म्स इंक्लूड, लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, बट यहाँ 3 डैशेस गिवन है तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स, उसके बाद हम लिख लेते हैं हिल्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं? माउंटेन्स, हिल्स और चलिए प्लेन्स लिख लेते हैं, ठीक है। प्लेन्स, वैलीज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। टिक फॉर द ट्रू एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन द स्ट्रीम्स, क्रीक्स एंड ब्रूक्स आर पॉन्ड्स। पॉन्ड्स नहीं, जो स्ट्रीम्स, क्रीक्स और ब्रूक्स थे दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल रिवर्स, ठीक है। सबसे लास्ट वाली लाइन ये रही, ठीक है। हमने यही पढ़ा था, जो स्ट्रीम्स, ब्रूक्स और क्रीक्स होते हैं स्मॉल रिवर्स के
पार्ट्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसके पास ही लिख लेते हैं, ठीक है। हिल्स एंड माउंटेन्स आर इक्वल इन हाइट, जो हिल्स और माउंटेन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हाइट में? नहीं, जो हिल्स होते हैं दे आर जनरली स्मॉलर एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स, हिल्स माउंटेन से छोटे होते हैं हाइट में, तो ये भी गलत हो गया। प्लेटोज आर सराउंडेड बाय क्लिफ्स, बिल्कुल ये प्लेटोज क्लिफ से सराउंडेड होते हैं। वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनोज, जो वी शेप्ड वैलीज होती हैं वोल्केनोज से फॉर्म करती है? नहीं, जो वी शेप्ड वैलीज होती हैं वो वोल्केनोज से फॉर्म नहीं करती, वो रिवर्स से फॉर्म करती हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली थोड़ा अलग प्रोसेस होता है इसका। व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? अर्थ की 3 लेयर्स है, सबसे बीच वाला सबसे पहले तो कोर, इनर कोर और आउटर कोर, उसके बाद उससे सराउंडेड होता है मेल्टन, ठीक है, मेल्टन उससे सराउंडेड होता है, ठीक है, और बीनीथ द क्रस्ट यानी कि अर्थ बिल्कुल उसके ऊपर, यानी कि क्या होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, ठीक है। सो वी कैन से द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, द बीनीथ द अर्थ क्रस्ट इज प्रेजेंट मेल्टन which is surrounded the earth, and inside, that means the center of the earth, the earth's core is present, okay। सो ये 3 लेयर्स अर्थ की जो आप लिख सकते हैं। हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं हमने अभी पढ़ा है, माउंटेन्स आर फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अंडरग्राउंड स्प्रिक्स एंड ऑल, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। हाउ डू रिवर्स गेट वाटर, रिवर्स को वाटर कैसे मिलता है? देखो प्राइमरी सोर्स हमारा रेन वाटर तो है ही, बारिश के पानी से रिवर्स को पानी मिलता है, एंड अलॉन्ग विद दैट द स्नो एंड आइस melts from the mountains and hills which added with the river water. This is how rivers is formed. And और भी एग्जाम्पल जो हमने पढ़े उनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। व्हाट आर वैलीज, वैलीज क्या होती है? तो वैली सबसे पहले तो वी से वैली, वी से वी शेप की होती है, ठीक है। एंड द स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर्स, द माउंटेन्स हिल्स के बीच में जो नैरो पाथ निकला रहता है उसको, और वी कैन ऑल्सो से दैट द पाथ that between the path of streams and rivers is also a valley, ठीक है, यानी कि ये रिवर्स यानी कि ये माउंटेन्स और हिल्स हो गए, इनके जो बीच में एकदम नैरो पाथ निकला रहता है उसको हम वैलीज बोलते हैं, ठीक है, ये वी शेप की होती हैं, ठीक है। नेम द नेचुरल प्रोसेस दैट फॉर्म्स द लैंडफॉर्म्स, नेचुरल प्रोसेस बताना है जो लैंडफॉर्म्स से फॉर्म होता है, तो एक इरोजन आप लिख सकते हैं, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, ठीक है, मतलब बहुत से एग्जांपल्स जो हमने चैप्टर्स रिलेटेड पढ़े, यू कैन राइट एनी ऑफ एग्जांपल फ्रॉम दोस, ओके। सो हियर आवर चैप्टर कंप्लीट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।